کہ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید الفطر کل ہوگی۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک۔ کل عید الفطر منائی جائے گی ملک بھر میں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ عید الفطر کل ہوگی۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ عید الفطر کل ہوگی۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے جس کا سب کو انتظار تھا۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ اب سے کچھ دیر پہلے اس کا اعلان کیا گیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ عید الفطر کل ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ کل عید الفطر ہوگی۔ عید الفطر منائی جائے گی کل۔ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا ہے کہ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید الفطر کل ہوگی۔ 24 مئی بروز اتوار کل یعنی کہ عید ہوگی۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ آپ کو بتائیں کہ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ 24 مئی کو عید الفطر ہوگی۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ رویت ہلال کمیٹی کی جانب سے یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے اور عید الفطر کل بروز اتوار ہوگی 24 مئی کو۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا۔ عید الفطر کل ہوگی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو اور شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ عید الفطر کل بروز اتوار 24 مئی کو ہوگی۔ شوال کا چاند نظر آ گیا اور عید الفطر کل منائی جائے گی۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ شوال کا چاند مبارک ہو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ روہی کی جانب سے سرائیکی خطے کو عید مبارک ہو۔ شوال کا چاند نظر آ گیا ہے۔ کل عید الفطر منائی جائے گی۔ صحافت کا ایک اور روشن درخشاں باب بند ہو گیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے انصار نقوی صاحب کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ عمران اسماعیل کے مطابق حادثے میں صرف 2 لوگ موجزانہ طور پر محفوظ رہے، باقی کسی کی امید نہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صحافت کا ایک اور روشن اور درخشاں باب بند ہو گیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے انصار نقوی صاحب کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ عمران اسماعیل کے مطابق حادثے میں صرف 2 لوگ موجزانہ طور پر محفوظ رہے، باقی کسی کی امید نہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے انصار نقوی صاحب کی شہادت کی تصدیق کی۔ عمران اسماعیل کے مطابق حادثے میں صرف 2 لوگ موجزانہ طور پر محفوظ رہے، باقی کسی کی امید نہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے، جبکہ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے انصار نقوی صاحب کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ عمران اسماعیل کے مطابق حادثے میں صرف 2 لوگ موجزانہ طور پر محفوظ رہے، باقی کسی کی امید نہیں۔ صحافت کا ایک اور روشن اور درخشاں باب بند ہو گیا۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل نے انصار نقوی صاحب کی شہادت کی تصدیق کر دی۔
اور صدر PFUJ GM جمالی خزانچی جمیل مرزا کی جانب سے سید انصار نقوی کی شہادت پر اظہار افسوس کیا گیا۔ سیکریٹری جنرل رانا محمد عظیم کا سید انصار نقوی کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ انصار نقوی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے، PFUJ کی جانب سے اظہار افسوس کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی فیملی کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ PFUJ عہدیداران کا انصار نقوی کی صحافتی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ صدر PFUJ GM جمالی خزانچی جمیل مرزا کی جانب سے سید انصار نقوی کی شہادت پر اظہار افسوس کیا گیا ہے۔ سیکریٹری جنرل رانا محمد عظیم کا سید انصار نقوی کی شہادت پر افسوس کا اظہار۔ اللہ تعالیٰ انصار نقوی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ PFUJ کی جانب سے کہا گیا کہ ان کی فیملی کو صدمہ برداشت کرنے کی ہمت دے۔ اور آپ کو بتائیں کہ کراچی طیارہ حادثے میں سینئر صحافی انصار نقوی صاحب شہید ہو گئے۔ اسی پر یہ رپورٹ۔ حادثے کا شکار ہونے والے بدقسمت طیارے میں سینئر صحافی انصار نقوی بھی سوار تھے۔ انصار نقوی لاہور میں 24 نیوز چینل میں سینئر ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اینڈ پروگرامنگ کے عہدے پر تعینات تھے۔ انصار نقوی عید کی تعطیلات منانے کے لیے اپنے آبائی شہر حیدرآباد جا رہے تھے۔ انصار نقوی کی اہلیہ رکن سندھ اسمبلی بیگم رانا انصار انہیں لینے کے لیے ایئرپورٹ پر ہی موجود تھیں جب طیارہ گرنے کی اطلاع آئی۔ گزشتہ شب تک انصار نقوی کی فلائٹ میں سیٹ کنفرم نہیں ہو رہی تھی، جس پر انہوں نے بذریعہ روڈ لاہور سے حیدرآباد نکلنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بعد ازاں سیٹ کنفرم ہونے پر وہ بدقسمت طیارے کے مسافر بن گئے۔ انصار نقوی نے مقامی اردو روزنامہ سفیر سے صحافتی کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے بعد انہوں نے انگریزی اخبار دی نیوز جوائن کیا، جہاں وہ 1 فروری 1991 سے 1 مئی 2002 تک حیدرآباد کے بیورو چیف رہے۔ انہی دنوں وہ نیوز چینل جیو نیوز سے وابستہ ہو گئے۔ انصار نقوی نے 26 دسمبر 2014 تک جیو نیوز میں بطور کنٹرولر نیوز خدمات سر انجام دیں۔ انصار نقوی کچھ عرصہ بول نیوز سے بھی وابستہ رہے۔ وہاں سے استعفیٰ دے کر انہوں نے 1 جولائی 2015 کو لاہور میں سٹی 42 نیوز کو بطور ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز جوائن کیا اور 1 مئی 2016 تک دی۔ 1 سال بریک لینے کے بعد انصار نقوی نے 19 جولائی 2017 کو 24 نیوز کو سینئر ڈائریکٹر کرنٹ افیئرز اینڈ پروگرامنگ کے طور پر جوائن کیا۔ انصار نقوی نے گزشتہ ماہ دسمبر میں اپنے چینل کے سٹاف کے ہمراہ عمرے کی سعادت حاصل کی۔ صاحبزادی کراچی کے ایک نجی چینل میں شعبہ پروگرامنگ سے وابستہ ہیں۔ ایک بیٹا ڈاکٹر اور ایک بیٹا ابھی زیر تعلیم ہے۔ مرحوم کی اہلیہ رانا انصار MQM پاکستان کے ٹکٹ پر خواتین کی مخصوص نشست پر دوسری بار MPA بنی۔ انصار نقوی طیارہ حادثے میں سب کو سوگوار چھوڑ۔ مزید بھی اسی پر بات کریں گے۔ صحافت کا ایک اور روشن اور درخشاں ستارہ ہم میں نہیں رہا۔ آپ کو بتائیں کہ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ سید انصار علی نقوی صاحب کراچی طیارہ حادثے میں شہید ہو گئے۔ الوداع انصار علی نقوی، الوداع۔ کراچی طیارہ حادثہ میں انصار نقوی سب کو سوگوار چھوڑ گئے۔ سٹی نیوز نیٹ ورک کے ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار علی نقوی کے آفس سے گھر واپسی کے مناظر۔ کراچی طیارہ حادثہ گہرے زخم چھوڑ گیا۔ شہید سینئر صحافی انصار علی نقوی کے اہل خانہ غم سے نڈھا، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ سٹی نیوز فیملی انصار علی نقوی کی شہادت پر ان کی فیملی کے ساتھ دل گرفتہ۔ سٹی گروپ کے ساتھ انصار نقوی کے بتائے سنہرے پل یاد کیے۔ کہنے کو واقعی کچھ ہے نہیں۔ خاص طور پہ میں اپنی بات کروں تو میرا ان سے تعلق سن 2002 سے ہے، اور جب ہم جس ادارے میں تھے تو اس کی ابھی ٹریننگ چل رہی تھی، تو ہم اس وقت سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ تھے، اور جب جس وقت ان کی شہادت ہوئی ہے ہم اس وقت بھی اسی ادارے میں اکٹھے کام کر رہے ہیں۔ جو خدشہ ہمارے ذہن میں تب سے موجود تھا وہ آج درست ثابت ہوا۔ انصار بھائی شہید ہو گئے جہاز کے حادثے میں۔ بہت بڑا سانحہ ہے۔ پرسوں رات کو ان سے گپ شپ ہو رہی تھی، اور جب سے انہوں نے سٹی نیوز نیٹ ورک کو جوائن کیا، اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر بہت جلدی جس شعبے میں بھی گئے بہت آگے آئے۔
सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी की शहादत पर सहाफती हलकों की जानिब से इजहार अफसोस। एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़हरा और दीगर ने सहाफती खिदमात को याद किया। CPNE का सीनियर सहाफ़ी अंसार अली नकवी की शहादत पर गहरे रंजो गम का इजहार। अल्लाह ताला मरहूम को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे और अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर एडिटर्स भी शहीद अंसार अली नकवी के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ को है। मजीद भी इसी पर बात करते हैं। कराची तैयारा हादसे में सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी भी कूच कर गए और इस जहाने फानी से कूच कर गए हैं। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। मिलनसार दिलकश मोहब्बत करने वाले अंसार नकवी कराची जहाज हादसे में हमसे बिछड़ गए। इस अंधोनाक सानया पर पूरी सिटी फैमिली इंतहाई दुख और अफसोस के आलम में है। हादसे के फौरी बाद किसी मौजज़े की मुंतज़िर सिटी फैमिली को अंसार नकवी की शहादत की खबर दी गई। जैसे हादसे की इत्तला मिली थी तो मौजे के लिए हाथ उठ गए थे, दुआएं थी, पूरी सिटी फैमिली मौजे के लिए मुंतज़िर थी कि अल्लाह पाक अपना खसूसी करम फरमाए। लेकिन शहादत नसीब हुई अंसार अली नकवी को। एक हमारा प्यारा दोस्त भाई उस्ताद हमसे वो बिछड़ गया। तो कल से जब हमें खबर पता लगी, दुआ थी अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, उनके करीब रहमत करे, उनको अपनी हिफाजत में रखे, मगर शहादत नसीब हो गई। वो दुख था जब लाहौर जाना, उनसे मिलना, उनके पास ऑफिस में बैठना, इतना सफ़र करके जब लाहौर पहुंचना, उनकी मुस्कुराहट होती थी जो हमारी थकावट को उतार देती थी। सिटी न्यूज नेटवर्क के मुल्तान स्टेशन पर काम करने वाले तमाम सीनियर से इंटरव्यू अंसार नकवी साहब ने लिए थे। इनकी मोहब्बत भरी मुस्कुराहट का असीर सिटी न्यूज नेटवर्क फैमिली का हर मेंबर इस अचानक सदमे से दो चार है। सोगवारी से नम आलूदा होती आंखों में दुख और अफसोस है। और एक ऐसा शफीक इंसान के अपने जूनियर वर्कर्स जो हैं उनको इतना एहसास दिलवाना कि वो उनके बड़े भाई हैं और उनसे उनका ये सहाफत, पाकिस्तान की सहाफत का एक बहुत बड़ा नाम, और सिटी न्यूज़ नेटवर्क के जितना छोटा से छोटा और बड़े से बड़ा वर्कर जो है वो इस वक्त सदमे से दो चार है। तो इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं जो कि गैर महसूस तरीके से आपको तमाम तर बेहतरी की तरफ गामजन करते हैं, आपकी रहनुमाई करते हैं, आपके उस्ताद होते हैं, आपके बड़े हैं। तो बिलाशुबा ये मीडिया इंडस्ट्री का, सिटी न्यूज़ नेटवर्क का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और ख़ासतौर पर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के बारे में मशहूर है कि इसमें जितने भी लोग होते हैं तमाम लोग आपस में फैमिली की सूरत में रहते हैं। तो जब फैमिली का एक बड़ा सरबराह आपके दरमियान में नहीं रहता तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके दिल के ऊपर क्या बीती है। सिटी न्यूज नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी ईद मनाने के लिए लाहौर से कराची रवाना हुए थे और ये बदकिस्मत त्यारा लैंडिंग से चंद लम्हे कबल हादसे का शिकार हो गया था। रजा मलिक, मुल्तान। सहाफत का एक और दरखशा बाब बंद हो गया। सिटी न्यूज नेटवर्क के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी तैयारे के हादसे में शहीद हो गए। अंसार नकवी की शहादत पर रहीम या खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर समेत तमाम सहाफियों ने इजहार अफसोस किया। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई। एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। कराची तैयारे हादसे में सिटी न्यूज नेटवर्क के सीनियर डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी की शहादत की खबर सुनते ही रहीम यार खान के सहाफी अक्षबार हो गए। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मुमताज मोनस कहते हैं कि अंसार नकवी साहब सहाफत की दुनिया में एक यूनिवर्सिटी थे जिनसे हमेशा सीखने को मिलता था। अंसार नकवी साहब जर्नलिज्म की एक यूनिवर्सिटी थे। उन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े अदारों में काम किया। उनका नाम जर्नलिज्म बरादरी में इंतहाई अदब और एहतराम से लिया जाता था। जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब चौधरी मोहम्मद इफ्तिखार का कहना था कि अंसार नकवी की शहादत की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ। अंसार नकवी साहब की शहादत में हर साफ़ी अश्कबार है, उसकी आंखें अश्कबार हैं। हम उसके गम के बराबर के शरीक हैं। उनके ख़ानदान के लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सब्र और जमील अता फरमाए। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद सादिक ज़िया ने कहा कि सहाफ़ियों के लिए अंसार नकवी की शहादत की खबर किसी साने से कम नहीं, वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आज हम एक बहुत बड़े सहाफ़ी से, बड़े कद आवर सहाफ़ी से महरूम हो गए हैं और इसका जो मुझे गम है या हमारी सहाफ़ी बरादरी को जो गम है वो नाकाबिले बयान है। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मुमताज यूनुस का कहना था कि अंसार नकवी की मग़फ़िरत और बुलंद दर्जात के लिए दुआ का सिलसिला भी जारी रखा हुआ है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। मुल्तान में ब्रायलर गोश्त भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। सरकारी कीमत 290 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि दुकानदार 50 रुपए जायद पर फरोख्त करने लगे। खरीदार 290 की बजाय 340 रुपए फी किलो में गोश्त खरीदने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट करेंगे इकबाल सादिक।
गरीब की पहुंच से दूर हो गया, इतना महंगा कि कोई छू भी ना सके। एक तरफ तो 10 रुपए इजाफे के बाद सरकारी कीमत 290 रुपए फी किलो हो गई, तो दूसरी जानिब खरीदार बेबसी की तस्वीर दिखाई दी है। 290 की बजाय दुकानदार को मुंह मांगी कीमत 340 रुपए देने पर मजबूर हो गए, जो कि सरकारी नरखनामे से फी किलो 50 रुपए ज्यादा है। ना इन्होंने रियायत करनी है ना बहस करनी है, इसलिए हम भी ले जाते हैं। मजबूरी है हमारी भी कि मेहमानों की खातिर तवाज़ा भी करनी है, ईद का मौका है। दुकानदारों का कहना है कि सरकारी नरखनामे बहुत कम है, वो सरकारी नरखनामों के मुताबिक गोश्त बेचेंगे तो अखराजात भी पूरे नहीं कर सकेंगे, और फिर गोश्त बनवाने के लिए गाहक की अपनी डिमांड्स भी तो हैं। हुकूमत सानू रेट जड़ा है वो कम दे रही है, यदि सप्लाई चली है आई दी 230 रुपए निकलता, गाहक साढ़े को मंगता बगैर पोटा कलेजी गर्दन, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਪੋਟਾ ਕਲੇਜੀ ਗਰਦਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਖਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਵਜ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ 110 रुपए ਦਾ ਜਾ ਕੇ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹਮੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ नहीं है। सरकारी नरकों में जिंदा ब्रायलर मुर्गी का रेट 213, सप्लाई 208, जबकि पोल्ट्री फार्म रेट 200 रुपए हो गया है। कैमरामैन आमिर शाह के साथ इकबाल सादिक, मुल्तान। अब आपको बताएं कि रोही चोलिस्तान में टिड्डी दल के हमले जारी। चोलिस्तान तरक्याती इदारा बहावलपुर, फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन और फोर्स की टीमों ने 3000 एकड़ पर स्प्रे करके टिड्डी दल का खात्मा किया। वायरस के बाद पाकिस्तान में टिड्डी दल का खतरा मंडराने लगा। रोही चोलिस्तान समेत जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ अजला में टिड्डी दल के बड़े सवारिम रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रोही चोलिस्तान में ऑपरेशन करके 3000 एकड़ पर टिड्डी दल का खात्मा किया गया। चोलिस्तान तरक्याती अदारा बहावलपुर जराये का कहना है कि चोलिस्तान में जारी ऑपरेशन में चोलिस्तान तरक्याती अदारा बहावलपुर, फेडरल प्लांट प्रोटेक्शन और आर्मी की टीमें हिस्सा ले रही हैं। जमीनी कंट्रोल के साथ साथ आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए फजाई ऑपरेशन भी किया गया। टिड्डी दल क्रॉप एरिया में फसलों को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। महकमा ज़राअत तौसी के पास वसाइल के बावजूद फसलों को बचाने के लिए टिड्डी दल के खिलाफ कोई मौसर कार्रवाई नहीं की जा रही। और रहीम खान में जाहिर पीर के नवाही इलाके गाजीपुर में टिड्डी दल के झुंड ने गन्ने और कपास की फसलों पर हमला कर दिया। किसान परेशान हैं, जबकि इंतजामिया ख्वाबे खरगोश के मजे लूटने में मसरूफ है। रहीम खान में एक बार फिर से टिड्डी दल ने अपना पड़ाव डाल दिया। जाहिर पीर के नवाही इलाके गाजीपुर में टिड्डी दल के झुंड ने कपास और गन्ने के पत्तों पर हमला करके उन्हें अपनी खुराक बनाया, जिससे किसान और काश्तकार फसल को तबाहाल देखकर परेशान हो गए। किसान कहते हैं कि टिड्डी दल ने झुंड ने फसलों को तबाह कर दिया है। इंतजामिया की जानिब से फसलों पर स्प्रे किया जाए। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने ईद के बाद मुमकिना मुकम्मल लॉकडाउन की हिमायत का ऐलान कर दिया। PIA तैयारा हादसे के बाद ताजरों को ईद उल फितर का त्यौहार सादगी और कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमती SOPs के मुताबिक मनाने की अपील की है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान ख्वाजा शफीक ने बताया कि ताजरों ने कारोबारी सरगर्मियां बहाल रखते हुए हुकूमती SOPs को नजरअंदाज किया। कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के पेश नजर वो ईद के बाद मुमकिना लॉकडाउन की हिमायत करेंगे। मैं देख रहा हूँ गुज़श्ता हफ्ते 10 दिन से कि ये वबा ज्यादा फैल रही है, लोग ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, और इसी तरह अगर हालात बढ़ते रहे तो हुकूमत को लॉकडाउन करना चाहिए, करना पड़ेगा। ख्वाजा शफीक बासियत एक पाकिस्तानी, बासियत एक इंसान उस लॉकडाउन की हमायत करेगा। ख्वाजा शफीक ने बताया कि PIA तैयारे के हादसा इंतहाई अफसोसनाक है। हादसा में लुकमा अजल बनने वालों के लवाकिन के गम में बराबर के शरीक हैं। उन्होंने ताजी बिरादरी और शहरियों से ईद को सादगी से मनाने की अपील की है। कल जो सानिया हुआ है, बहुत बड़ा दिलखराज सानिया PIA का जो तैयारा तबाह हुआ है, वहाँ उसमें भी जो लोग लुकमा अजल बने हैं, हमारे भाई हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, तो हमें इंतहाई सादगी से, इंतहाई खामोशी से ईद के इस त्यौहार को गुजारना है, इसकी सेलिब्रेशन नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा शफीक का कहना था कि एहतियाती तदबीर अपनाते हुए ईद के मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी कारकर्दगी के बायस पहला नंबर हासिल किया है। ईद के मौके पर भी शहर में खुसूसी सफाई का ख्याल रखा जाएगा। डस्टबिन, हैंड कार्ट्स और कंटेनर्स मिल जाने से शहर में सफाई का मयार बेहतरीन होगा।
मुल्तान को साफ सुथरा और उजला बनाने की मुहिम का आगाज कर दिया गया है। शहर की मारूफ शाहराहों और मसरूफ मार्केटों में 300 वेस्ट बिन नस्ब करने की तैयारियां भी मुकम्मल है। डिप्टी कमिश्नर ने गोलबाग में मंसूबे का इफ्तिताह किया। डिप्टी कमिश्नर आमिर खट्टक का कहना था कि ईद के बाद सैनिटरी वर्कर्स को 550 हैंड कार्ड्स भी दी जा रही हैं। फर्स्ट उसमें 300 वेस्ट बिन्स हैं, उसके अलावा 150 कंटेनर्स हैं और तकरीबन 500 हैंड कार्ड्स हैं। तो ये इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो हमारा ऑपरेशनल विंग है वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का, उसको काफी बूस्ट मिलेगा इससे, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुल्तान के अवाम से भी कि वो इसको यूटिलाइज भी करें। आमिर खट्टक का कहना था कि कंपनी की बोसीदा मशीनरी और कंटेनर्स को मरम्मत और तब्दील किया जा रहा है। सफाई बारे शिकायत के अजाले के हवाले से मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी अब तक सूबे भर में टॉप पर है। आमिर खट्टक का मजीद कहना था कि लेबर कॉम्प्लेक्स करंटीना सेंटर में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने बेहतरीन काम किया है। मुझे ये बताते हुए फख्र महसूस हो रहा है कि अभी जो रिसेंट सर्वे हुआ है पंजाब में, उसमें मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी सबसे टॉप पे रही है। इनकी 100% एफिशिएंसी रही है, तो इस पे मैं इनको कंग्रेचुलेट करता हूँ। और ये सब पॉसिबल हो सकता है जब मुल्तान के अवाम हमारे साथ ताउन करेंगे। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान आमिर खट्टक का कहना था कि पंजाब भर में होने वाले सर्वे में अपनी कारकर्दगी के बायस मुल्तान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी पहले नंबर पर रही है। अब दही इलाकों में भी क्लीन एंड ग्रीन मुहिम शुरू की जा रही है। पूरी कोशिश है कि मुल्तान क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान इंडेक्स मुकाबले पहली पोजीशन का एजाज हासिल करे। कैमरामैन एडी नवाज के साथ रजा मलिक, मुल्तान। ईद में वक्त कम और मुकाबला है सख्त। मुल्तान की गर्देसी मार्केट में बच्चे बड़े और खवातीन ईद की खरीदारी में मसरूफ हैं। मजीद बता रही हैं सुहेरा तारिक। बिल्कुल, ईद में वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। खवातीन, बच्चे और बड़े सब ही ईद की शॉपिंग में मसरूफ हैं। चूंकि ईद के दिनों में बाजारों को 10 बजे तक रात खुले रहने की इजाज़त दी गई थी, इसीलिए शॉपिंग चल रही है। इस वक्त मैं गुलगश्त गर्देसी मार्केट में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि हर जानिब ईद का रश है। जो चाहे जूते हो, कपड़े हो या ज्वेलरी, सब लोग ईद की खरीदारी में मसरूफ है। यहाँ भी बच्चे जो है वो ज्वेलरी खरीद रहे हैं, दुकानदार भी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कितनी सेल हो रही है और कितना जोशो खरोश है लोगों में ईद की खरीदारी? बताएं, बोलो। अच्छी सेल हो रही है। कोरोना की वजह से दुकानें बंद रहने की वजह से अब ग्राहक आ रहे हैं। ग्राहक यहाँ पर आ रहे हैं और लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं। बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। डीजी खान में शहरियों की ईद के सिलसिले में शॉपिंग आखिरी मरहले में पहुंच गई। कपड़ों की मुनासबत से जूते तलाश करने में शहरी मसरूफ हैं। दुकानों में रश होने से दुकानदार भी खुशी से निहाल हैं। ब्यूरो चीफ ज़ीशान सफदर की रिपोर्ट देखिए। बाजारों में ईद की शॉपिंग के सिलसिले में कपड़ों के बाद जूते की दुकानों पर रश बढ़ गया। शहरियों की कसीर तादाद जूते में मसरूफ है। शूज लेने के लिए आई हूँ, बच्चों के कपड़े भी तो मुकम्मल हो गए थे। दुकानदारों ने कहा कि काफी अरसे बाद दुकानों पर रश हुआ है। लॉकडाउन के बायस रोजगार मुतासिर हो चुका था। जैसे कि देख रहे हैं सर, अब मजीद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बेहतर है। जैसे कि नहीं तो हालात बहुत खराब हो गए थे लॉकडाउन की वजह से। खर्चे वगैरह बिल्कुल ही खत्म हो गए थे, रेंट जेब से भरने पड़ गए थे हमें। अब उनकी मेहरबानी, हमें 2 दिन दिए हैं ये, अब हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का है। चांद रात तक बाजारों में खरीदारी का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन अब्दुल कादिर के हमरा ज़ीशान सफदर, रोही, डेरा गाजी खान। ईद की आमद है। अब दर्जियों के बाद हजामों की भी बुकिंग होने लगी। हजामों ने कटिंग के रेट्स भी डबल कर दिए। शहरी लंबी कतारों में कटिंग करवाने का इंतजार करने लगे हैं। ब्यूरो चीफ डीजी खान ज़ीशान सफदर की रिपोर्ट। आते ही डीजी खान में हजामों की दुकानें खचाखच भर गईं। अब दर्जियों के बाद हजामों की बुकिंग भी शुरू हो गई। ईद का मजा दोबाला करने और लॉकडाउन की कसर निकालने के लिए हजामों ने भी रेट डबल कर दिए। कहते हैं ईद के मौके पर हम डबल फीस लेकर ईदी वसूल करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ईद का सीजन है, राश की बहुत भरमार है, काम बहुत ज्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन साल में यही दिन होता है क्योंकि हम ईद के 2-3 दिन हम डबल चार्ज कर देते हैं। इस वजह से ईद की खुशी में ये हमारी ईदी होती है। शहरी कटिंग करवाने के लिए हजाम की दुकानों में कतारें लगाकर बैठे दिखाई दिए। उनका कहना था जैसे ही ईद का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे ही हजामों के पास रश के साथ शहरियों की बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। कहीं इस बार रश के बायस ईद पर कटिंग से महरूम न रह जाएं। अहमदपुर शर्किया सिदरा कत्ल केस का मामला। गैरत के नाम पर कत्ल होने वाली सिदरा 3 बच्चों की मां थी। शक की बिना पर भाई ने छुरियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। कत्ल केस में थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम को जिस्मानी रिमांड के लिए पेश किया तो अहमदपुर शर्किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने मुलजिम सलमान का 6 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दिया। पुलिस का मौकिफ है कि 6 दिन में मुलजिम सलमान से आला कत्ल बरामद करना और मजीद तफ्तीश करनी है। वरसा का कहना है कि कत्ल की जो वजूहात FIR में बताई गई हैं वो झूठी और बेबुनियाद हैं।
पुलिस झूठे इल्जामात लगा रही है। मकतूला की वालिदा का मजीद कहना था कि आला कत्ल मौके पर पुलिस ने एक घर से बरामद कर लिया था। अब नाजायज 6 दिन का जिस्मानी रिमांड लिया गया है। और बहावलपुर में कोरोना के हवाले से अच्छी खबर आ गई। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम बायोसेफ्टी लेवल 3 लैब में कोरोना के टेस्टों के लिए जदीद ऑटोमेटिक मशीन पहुंच गई। अब रोजाना 90 की बजाय 700 टेस्ट हो सकेंगे। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए पंजाब में कायम बायोसेफ्टी लेवल 3 की लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है। सिविल अस्पताल बहावलपुर में कायम बायोसेफ्टी लेवल 3 लेबॉर्ट्री में कोरोना वायरस के टेस्ट के लिए नई ऑटोमेटिक मशीन इंस्टॉल कर दी गई। नई मशीन के आने से बहावलपुर में रोजाना की बुनियाद पर टेस्ट करने की सलाहियत में इजाफा होगा। और कमिश्नर मुल्तान शानुल हक की हिदायत पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन शहर ओलिया को रोशनियों का शहर बनाने के लिए मुतहरिक। हाई कोर्ट रोड और ओल्ड बहावलपुर रोड पर स्ट्रीट लाइट्स फाल कर दी। चुंगी नंबर 8, 9 फ्लाईओवर्स, सर्किट हाउस, किला कोना, कासिम बाग के लाइट्स फंक्शनल कर दी गई हैं। सीसीईओ कॉर्पोरेशन इकबाल फरीद ने कहा कि स्ट्रीट लाइट्स फाल की जा रही हैं। शहर की तमाम तारीखी इमारत पर भी लाइट्स लगाई जा रही हैं। तमाम स्ट्रीट लाइट्स का बाकायदा रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है। बहावलपुर में पीएचए को फंड्स ना मिल सके। मुलाजमीन हुकूमती ऐलान के बावजूद ईद पर तनख्वाहों से महरूम है। डीजी पीएचए ने मुलाजमीन को ईद और जून तक की तनख्वाहें अदा करने के लिए हुकूमत से खुसूसी फंड मांग लिया है। पीएचए बहावलपुर की जानिब से मुलाजमीन को ईद की पहली तनख्वाहें अदा न की जा सकी। पीएचए को हुकूमत की जानिब से सैलरी ग्रांट की नहीं मिली, जिसकी वजह से तमाम मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम रहे। तमाम मुलाजमीन को मार्च और अप्रैल की तनख्वाहें भी 2 माह की ताखीर के साथ अदा की गई थी। डीजी पीएचए का कहना था कि इनके पास फंड्स खत्म हो चुके हैं। तमाम निजाम हुकूमती ग्रांट पर चल रहा है। तीसरे क्वार्टर की रकम ताखीर से मिली है, जिसके बायस गुज़िश्ता माह की तनख्वाहें अदा कर सके हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी क्वार्टर का फंड नहीं मिला, जिसकी वजह से ईद की तनख्वाहें अदा नहीं कर सके। बाकी तमाम महकमों के मुलाजमीन को ईद की तनख्वाहें अदा कर दी हैं, मगर इनके मुलाजमीन अभी तक इससे महरूम हैं। कोटअद्दू में बुनियादी मरकज़ सेहत दायरा दीन पनाह में सफाई अमले की कमी या फिर इंतजामिया की हरधर्मी मिडवाइफ को खाकरोब बना दिया। मिडवाइफ की कमरे की सफाई करने की वीडियो वायरल हो गई। बुनियादी मरकज़ सेहत दायरा दीन पनाह में मिडवाइफ से खाकरोब का काम लिया जाने लगा। मिडवाइफ महविश से कमरों की सफाई कराने की फुटेज वायरल हो गई। फुटेज में मिडवाइफ महविश को फर्श पर पोछा लगाते, डस्टबिन साफ करते और जाले उतारते देखा जा सकता है। जराये के मुताबिक अस्पताल इंतजामिया ने सफाई अमले पर नरमी जबकि दूसरे मुलाजमीन पर शाही निजाम कायम कर रखा है। एमएस डॉक्टर जफरुल्लाह साहिर ने मौकफ देते हुए बताया कि मिडवाइफ महविश की वायरल वीडियो का नोटिस ले लिया गया है। अस्पताल की सफाई सब मुलाजमीन की ड्यूटी है। इस तरह की वीडियो बनाकर अस्पताल इंतजामिया को ज़दोखूब करने की कोशिश की गई है। अब आपको बताते हैं विहाड़ी के नवाही गांव 553 ईबी की 17 साला लाइबा बीबी पुर इसरार बीमारी में मुब्तला है। वालिद की वफात के बाद इलाज मुआलजा न होने की वजह से दिमागी तवाज़ुन खो बैठी है। इलाज के लिए किसी मसीहा की मुंतज़िर है। ये रिपोर्ट देखिए। विहाड़ी के नवाही गांव 553 ईबी का मेहनत कश मोहम्मद अयूब 9 साल कबल दुनिया से रुखसत हो गया था। इसका एक बेटा, 2 बेटियां और ज़ईफुल उम्र बीवी कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रही है। लाइबा की वालिदा ने बताया कि लाइबा की उम्र 16 साल है। मोजी बीमारी की वजह से इसकी बढ़ोतरी भी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से वो सिर्फ 6 से 7 साल की नजर आती है। खातून का कहना है कि लोगों के घरों में कामकाज करके लाइबा का इलाज कराया, मगर अब वो भी बूढ़ी हो चुकी है और कामकाज करने से भी कासिर है। बंदे ਨੂੰ ਤਾਂ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫੋਟਾ ਹੀ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਆ। ਹੁਣ ਘਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਧੁੱਪੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹਨੂੰ रोटी पानी खिलाती आ। लाइबा की छोटी बहन पढ़ना चाहती है, लेकिन पैसे न होने की वजह से पढ़ाई जारी नहीं रख सकती। मुतासरीन ने वजीर आजम से इमदाद की अपील की है। रहीमिया खान की डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों में ईद गिफ्ट तकसीम करने की तकरीब मुनक्किद हुई। डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों में ईद के तोहफे तकसीम किए गए। आमिर भट्टी की रिपोर्ट। खान की डिस्ट्रिक्ट जेल में कैदियों में ईद के गिफ्ट तकसीम करने के हवाले से होने वाली तकरीब में एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक, डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद और डिस्ट्रिक्ट जेल सुपरिटेंडेंट सैयद बाबर अली समेत दीगर शरीक हुए। तकरीब में एमपीए चौधरी मोहम्मद शफीक और डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद ने कैदियों में तोहफे तकसीम किए। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अली शहजाद का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट जेल के कैदियों को भी ईद की खुशियों में शामिल करने के लिए तोहफे तकसीम किए। ईरान को बताया है कि ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हुकूमत और हम सारे आपके साथ हैं
اور کورونا کے لحاظ سے بھی ان کو احتیاطی تدابیر کو فالو کرنے کا کہا گیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کی عید بڑی اچھی گزرے گی۔ ایم پی اے چودھری محمد شفیق نے پوری قوم کو عید کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ کورونا سے پوری قوم نے مل کر لڑنا ہے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اسے شکست دیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے جو یہ گفٹ بیگ بھیجے تھے وہ ان میں تقسیم کیے ہیں، انہیں مبارکباد دی ہے قیدیوں کو، اور آج ان سے انشاءاللہ میں نے وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب عدالتوں میں میرٹ پہ یہ رہا ہو کے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ایسی غلطی نہ کریں کہ دوبارہ انہیں یہاں آنا پڑے۔ ڈسٹرکٹ جیل سپرنٹینڈنٹ سید بابر علی کا کہنا تھا کہ حکومت پنجاب اور ڈسٹرکٹ جیل انتظامیہ جیل میں قیدیوں کو بہتر سہولیات کی فراہمی میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے، کیونکہ نفرت انسانوں سے نہیں جرم سے ہوتی ہے۔ تمام سٹاف اور پرزنرز کرونا فری ہیں، ہمارے اقدامات تمام SOPs جاری ہیں۔ اس طرح عید کی خوشیوں میں ہم نے بہت سارے اقدامات کے علاوہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اس دفعہ تمام پرزنرز میں تحائف کی تقسیم کا بھی ایک اہتمام کیا، تو ہم آج وزیر اعلیٰ صاحب کی ہدایت پہ تمام قیدیوں میں تحائف تقسیم کریں تاکہ عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ ڈپٹی کمشنر علی شہزاد کا کہنا تھا کہ شہری احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں تاکہ وائرس پر کنٹرول پایا جا سکے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بٹی، روہی، رحمیار خان۔